Jai Hind, dear students of class 11 Geography Optional. Welcome again in Geography class. Today I am going to discuss the topic distribution of temperature. The global distribution of temperature can well be understood by studying the temperature distribution in January and July. The temperature distribution is generally shown on the map with the help of isotherm. Now you can observe this map. Are you observing? These lines showing the places of equal temperature are known as isotherm line. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Isotherm line. So this figure will help you a lot to understand this part. The general isotherm lines are joining places having equal temperature. Figure 9.4 and A and B show the distribution of surface air temperature in month of January and July. In general, the effect of latitude on temperature is well found on the map, as the isotherms are generally parallel to the latitude. The deviation from this general trend is more profound in January than in July. जो isotherm में ज़्यादा कर्वेचर अंतर आता है वो खास करके जनवरी के हिस्से में नहीं बल्कि जुलाई में होता है. देखो ये किस महीने का है? जनवरी. आइसोथर्म देखिए और ये मैप देखो, ये है कितना ज्यादा डेविएशन हो रहा है जुलाई में. बहुत ज्यादा डेविएशन हो रहा है. इसी चीज को यहाँ समझाना है. नाउ लिसन. In the northern hemisphere, the land surface area is much larger than the southern hemisphere. ये फैक्ट दिमाग में बैठा लो. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं. Hence, the effect of land masses and the ocean currents are well known. In January, the isotherm deviate to the north over the ocean and south over the continent. सुनो ध्यान से. In January, the isotherm deviate to the north over the ocean and south over the continent. This can be seen as North Atlantic Ocean. The presence of warm ocean current, Gulf Stream, and North Atlantic drift make the Northern Atlantic Ocean warmer and isotherm bend towards the north. देखो इस मैप में ये मंथ है जनवरी. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से क्या होता है? विंटर. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा है. कारण क्या है? ये है आपका अटलांटिक ओशन, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम जाती है इधर, जो कि यहाँ के समुद्र को गर्म रखती है और पूरी तरह से जमने नहीं देती है. ये कारण है. फर्दर गिवन over the land the temperature decreases sharply and the isotherm bend toward the south in Europe. It is much pronounced in the Siberian plain. The mean annual January temperature along the 60-degree east longitude is minus 20 degrees Celsius, both at 80 degree north and 50 degree north latitude. यहाँ पे देखो माइनस टेम्परेचर माइनस में यहाँ पे. In the equatorial ocean over 24 degrees Celsius in the tropics and 2 degrees Celsius minus 0 degrees Celsius in middle latitudes and minus 18 degrees Celsius to minus 48 degrees Celsius in Eurasian continental interior. सबसे अधिक ठंड आपको अगर कहीं मिलेगी तो ये कौन सी मंथ का है? जनवरी का. देखिए ये यूरेशियन का जो इंटरनल रीजन है यूरेशिया का, ये पार्ट, यहाँ सबसे अधिक ठंड होती है माइनस. इंडिया में भी एक प्लेस है द्रास, वहाँ -40 -45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड, वो इसके वजह से नहीं. क्लियर इट इज. Now said, the effect of ocean is well pronounced in the southern hemisphere. और साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे लैंड हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं, वहां पे लैंड मासेस का अधिक प्रभाव है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस का प्रभाव है. Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes and the variation in temperature is more gradual in the northern hemisphere. The isotherm of 20 degrees Celsius, 10 degrees Celsius and 0 degrees Celsius runs parallel to 35 degrees south, 45 degrees south and 60 degrees south latitude respectively. ध्यान से देखो.
ये दोनों मैप ध्यान से देखो, यहाँ पे आइसोथर्मल डेविएशन कम है, इस मैप में भी देखिए आइसोथर्मल डेविएशन कम है, क्योंकि यहाँ पे ओशन का इफेक्ट ज्यादा है। In July, the isotherm generally run parallel to the latitude. The equatorial oceans record warmer temperature, more than 27 degrees Celsius over the land, and more than 30 degrees Celsius is noticed in the subtropical continental region of Asia, along the 30-degree north latitude. Along 40-degree north runs the isotherm of 10 degrees Celsius, and along the 40-degree south, temperature is 10 degrees Celsius. मैप में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कहाँ पे किस महीने में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है। जैसे यहाँ दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, यू कैन सी हियर, राइट। सो द लास्ट गिवन फिगर 9.5 shows the range of temperature between January and July. The highest range of temperature is more than 60 degrees Celsius over the northeastern part of Eurasian continent. देखो फिगर 9.5, सबसे अधिक टेम्परेचर वेरिएशन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे यूरेशियन पार्ट में, इधर देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ये शो कर रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में एक्चुअली, और यहाँ पे देखो उसके नियरर एरिया में टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। इसको दोबारा पढ़ रहे हो, देखो फिगर 9.5 shows the range of temperature between January and July. रेंज बता रहा है जुलाई और जनवरी के बीच में सबसे अधिक अंतर कहां पे रहा। रेंज ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, मोर देन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी। द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड between 20 degree south to 15 degree north latitude. Now see this map. अब इस मैप को देखो, पूरे साल में जो सबसे अधिक वेरिएशन अगर दिख रहा है कहीं भी टेम्परेचर का, तो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे साइबेरियन रीजन में। यहाँ टेम्परेचर कभी +10 में तो कभी -50 में दिया है ना नीचे। द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई, रेंज सब, और सबसे इस रीजन में देखिए यहाँ 40 डिग्री का है। इंडिया के पास आओ, इंडिया के पास आके देखो साउथ इंडिया ये है, साउथ इंडिया में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, देखिए साउथ इंडिया में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, पूरे साल में 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग, इसीलिए साउथ इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट। जबकि नॉर्थ इंडिया जो कि ये वाला पार्ट पड़ता है, कर्जर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन 20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा है। इवन इन थार डेजर्ट इट इज वेरी मच मोर देन 30 डिग्री। थार डेजर्ट का एरिया है, यहाँ से देखो 30 डिग्री दिखा रहा है। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इस तरह से चेक करना है। क्लियर इट इज। नाउ द रिमेनिंग वन टॉपिक वी हैव, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर माने ताप का व्युत्क्रम। जनरली हम लोग मानते हैं कि जब हम लोग प्लेन से माउंटेन्स में जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल करता है, mountains are cooler than the plains, but sometimes it just inverse. Normally temperature decreases with increase in elevation, it is right। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, it is called normal lapse rate, बताए थे 1 degree after 165 meter। At time the situation is reversed and the normal lapse rate is inverted। लेकिन कभी कभी ये normal lapse rate inverted हो जाता है, और अब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। This is called inversion of temperature। टेम्परेचर यानी ताप का व्युत्क्रम, उल्टा हो जाना। ऊंचाई के साथ जनरली तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, जबकि इस तरह के प्रोसेस में कभी कभी इन्वर्जन हो जाता है, और बिल्कुल इस इन्वर्जन की वजह से जैसे जैसे हम ग्रेट हाइट की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस। हालांकि होता तो बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना। लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर, देखो ध्यान से, अ लॉन्ग विंटर नाइट, लंबी ठंडे के दिनों में रात लंबी होती है, स्काई क्लियर होता है जनरली, एयर इज स्टिल, हवा भी रुकी होती है, बहुत तेज नहीं बहती, फॉर
inversion, it is an ideal condition. The heat of the day is radiated off during the night. दिन भर का तापमान रात को क्या होता है, रेडिएटेड बैक होता है. एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव. और लेकिन सुबह तक जो अर्थ के ऊपर की एयर है उसके मुकाबले अर्थ क्या हो जाती है, कूलर. ओवर पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर. लेकिन पोलर एरिया में जनरली ये इन्वर्जन पूरे साल होता है. सो सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. Smoke and dust particles gets collected beneath the inversion layer and spread horizontally to fill the lower strata of atmosphere. Dense fogs in mornings are common occurrences, especially during winter season. This inversion commonly lasts for few hours until the sun comes up and beings warm the earth. और ये इन्वर्जन कब तक चलता रहता है, जब तक इंसुलेशन के द्वारा सनलाइट धरती तक ना आ जाए और धरती का टेम्परेचर बढ़ न जाए. The inversion takes place in hills and mountainous due to air drainage. ऐसा पोलर रीजन में तो पूरे साल होता है, हिली और माउंटेनस रीजन में भी होता है. कैसे? कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. कोल्ड एयर क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से, भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जाने लगती है, ड्रेनिंग होने लगती है उसकी. Being heavy and dense, the cold air act almost like water and moves down the slope. तो पहाड़ के ऊपर से ठंडी हवा जो कि भारी होती है वो वैली की तरफ आने लगती है, नीचे की तरफ. Pile up the deeply moves down the slope. Pile up deeply in pockets. The valley bottom sees warm air above. जो वैली है जिसके ऊपर वार्म एयर है उसके ऊपर आने लगती है. This is called air drainage. तो ये माउंटेनस एरिया में इसको हम लोग एयर ड्रेनेज भी बोलते हैं. इट प्रोजेक्ट्स प्लांट. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज. इसके वजह से जो एयर ड्रेनेज होता है इसके वजह से फ्रॉस्ट कम होती है और प्लांट का डैमेज कम होता है. फ्रॉस्ट डैमेज से प्लांट का ही नुकसान ज्यादा होता है और कम हो जाता है, रुक जाता है. वंस अगेन आई एम जस्ट समराइजिंग the heat budget of the earth. ध्यान से सुनो. टोटल 65 यूनिट आता है, 35 यूनिट ऑलरेडी बैक हो जाता है. जैसे बाई क्लाउड 27%, बाई सरफेस 2%, स्कैटर्ड डायरेक्टली 6%. सब मिला के कितना हो गया, 27, 2 and 6, 35. 65 यूनिट आती है धरती तक गर्मी, इंसुलेशन आती है इन शॉर्ट वेव फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन. इसमें जो अर्थ है डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है 14% और सरफेस डायरेक्टली इसमें 14% बाय द एटमॉस्फेयर है एब्जॉर्प्शन और 51% डायरेक्टली बाय और सरफेस. तो ये जो 65% आया इसका 14% यानी 14% एब्जॉर्ब कौन करता है, एटमॉस्फेयर, और 51% बाय और, तो दोनों को जोड़ दो कितना एब्जॉर्प्शन हो गया, 65. और जब वापस होता है तो 17% रेडिएटेड डायरेक्टली बाय द अर्थ सरफेस एंड 34% बाय द एटमॉस्फेयर. इन दोनों को जोड़ो तो एटमॉस्फेयर के थ्रू 34 और 17% रेडिएटेड डायरेक्टली बाय द अर्थ, दोनों को जोड़ो 51% हुआ एंड 14% फ्रॉम इंसुलेशन. तो इसमें 51 में 14 जोड़ दो तो कितना हो गया, 65. तो 65 यूनिट जो कि धरती पे टेम्परेचर आया था उतना ही 65 यूनिट वापस बैक हो गया स्पेस में. इसको हम लोग बोलते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ. सो प्रिपेयर लेसन वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.